A very good morning to all of you. Hope you will be fine. So, children, today we are going to start our new topic, that is nouns gender. Okay. So, at first we should know what is the meaning of this term gender. Then let me tell you, the division of nouns or pronouns in different classes is called gender. Okay. There are four kinds of gender. How many kinds? Four. First one is your masculine gender. Second one is your feminine gender. Third one is your neuter gender. And the fourth one is your common gender. Got it? Masculine, feminine, neuter, and then common. Now we should know uh, what is the meaning of masculine gender. Then children, nouns that denotes male. वैसा नाउन जो डिनोट करता हो मेल को, दैट विल बी योर masculine gender. And then the nouns that denote female, that will be your feminine gender. Okay. And the nouns that denote non-living things will be your neuter gender. And the nouns that denote both male and female, they will be called as common gender. Okay. Now examples आप देख लो. masculine gender, boy, ये कहाँ नॉन्स कौन सा यहाँ मेल है, तो ये आपका मैस्कुलिन जेंडर. गर्ल, दिस इज़ योर फेमिनिन जेंडर, क्योंकि इसमें जो हमारा जेंडर है वो फीमेल है. ओके. नाउन जो फीमेल है, सो इट विल बी इन योर फेमिनिन जेंडर. थर्ड वन इज़ योर व्हाट, न्यूट्रल जेंडर. तो जैसे मैंने बोला बुक, पेन, देन ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, देन दे विल कम अंडर व्हाट, न्यूट्रल जेंडर. एंड द फोर्थ वन इज़ योर कॉमन, मीन्स व्हाट, इट विल इंक्लूड बोथ मेल एंड फीमेल बोथ. जैसे मैं बोलती हूँ आई एम अ टीचर, तो टीचर मीन्स व्हाट, क्या मैं सिर्फ उसमें सिर्फ फीमेल आएंगी टीचर में? नहीं. आपके स्कूल में सर भी है और मैम भी है, आप उन दोनों को कॉमन क्या बोलते हो, टीचर बोलते हो. ऐसा तो नहीं है कि सर को टीचर बोलते हो, मैम को नहीं, मैम को टीचर बोलते हो एंड सर को नहीं, नहीं ना. इट इज़ नॉट लाइक दैट. सो टीचर मीन्स व्हाट, either ma'am or sir, they will not either, both ma'am and sir will be called as teacher. तो it means what, कॉमन जेंडर में हम क्या इंक्लूड करते हैं, बोथ होने चाहिए, मेल एंड फीमेल है तो हम दोनों को एक कॉमन नेम देते हैं. जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर में क्या आप फीमेल को अलग कुछ बोलते हो, मेल को कुछ अलग बोलते हो? नहीं, ये एक ही होते हैं. गॉट इट. अब जैसे आप अपना एग्जाम्पल देख लो, स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गर्ल को स्टूडेंट बोलती हूँ, बॉयज़ को नहीं बोलती हूँ, बॉयज़ को बोलती हूँ तो गर्ल्स को नहीं बोलती हूँ, ऐसा है? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, बिकॉज यू बोथ विल बी कॉल्ड एज स्टूडेंट्स. सो बिकॉज their common name is student, so this student will be your common gender. Okay. So let's start our topic. Now see children, there are some sentences are given, as you can see in the book. Open the page number that is your 44. Okay. And chapter number 12, page number 44, chapter number 12, nouns gender. See, some examples are given. An ox pulled the cart. Here two words are aligned in this sentence. First one is your ox and the second one is your cart. Then ox is what, this is your masculine gender, because यहाँ जो है वो मेल को डिनोट कर रहा है, this noun. Okay, then this will be your masculine gender. And the word cart, this is your non living thing, so it will come under what, neuter gender. Fine. The second one, queen, is underlined and the crown is underlined. तो queen है आपकी क्या, फीमेल है, so it will come under feminine gender. And the word crown will is your what, this is your non living thing, ये non living thing है, so it will come under neuter gender. Got it. So in this way read all the sentences. Then see children, in each sentence some words are underlined. Okay. And see their explanation is also given, you can see here, you can read it. Okay, fine. Now definition is also given, which I have already told you at the beginning. What is my feminine gender, what is masculine gender, what is neuter gender, what is common gender. I have given examples also, so you can read it here also. So read it. Let's start. The male is said to be masculine. जो नाउन मेल को डिनोट कर रहा है वो आपका मैस्कुलिन जेंडर कहलाएगा. एग्जाम्पल मैन, लॉयन, हीरो, एट्सेट्रा. एंड द नाउन विच आर डिनोटिंग फीमेल, दैट विल बी कॉल्ड एज फेमिनिन जेंडर. उसे क्या कहोगे आप, फेमिनिन जेंडर. फाइन. एग्जाम्पल्स देखो आप क्या क्या है, वुमेन, देन लॉयनेस, हीरोइन, ये सारे क्या हो गए आपके, सी द एग्जाम्पल्स, वुमेन, लॉयनेस, हीरोइन, दीज आर फेमिनिन जेंडर. फाइन. नाउ सी, there are many words which are used for non living things. A noun that denotes a non living thing is said to be of neuter gender.
मैंने बताया ना कि थिंग क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स लिविंग नहीं, मैं नॉन लिविंग की बात कर रही हूँ थिंग्स में भी, ठीक है। ऑब्जेक्ट, तो वो सारे जो हो जाएंगे आपके कौन से जेंडर में आएंगे, दैट विल कम अंडर न्यूट्रल जेंडर। फाइन, सी द एग्जाम्पल्स, टेबल हो गए, पेन हो गए, ट्री और मोबाइल जो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ये भी आपका न्यूट्रल जेंडर है। फाइन, नाउ सी द नेक्स्ट वन, कॉमन जेंडर। देर आर मेनी वर्ड्स विच कैन बी यूज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। मैंने बताया ना कि इसमें आपको जेंडर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन में पता नहीं चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है, ये चीज़ पता नहीं चलेगा, और उनको एक कॉमन सा जेंडर का नाम दिया जाता है, दैट इज़ अ कॉमन जेंडर। ओके, उसमें क्या होगा कि वो दोनों आ जाएंगे, मेल्स और फीमेल्स दोनों इंक्लूडेड रहेंगे। ओके, और ये आपके जो कहलाएंगे कौन से जेंडर कहलाएंगे, दैट विल बी योर कॉमन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको स्टूडेंट, टीचर, आर्टिस्ट, फ्रेंड, एट्सेट्रा। अच्छा, कैन यू टेल मी, क्या इफ़ अ गर्ल इज़ हैविंग फ्रेंड देन व्हाट शी विल टेल, वो उसे क्या फ्रेंड नहीं कहेगी? या मेल के पास अगर कोई बॉय के पास कोई फ्रेंड है तो क्या उसे कुछ और कहेगा वो? नहीं, बोथ आर सेम, चाहे वो लड़कियों की दोस्त हो या लड़कों के दोस्त हो, दे विल बी कॉल्ड एज फ्रेंड, दे विल बी अ कॉमन। फाइन, नाउ see children, come to the exercises. See the first one, sort of the words and put them in the right treasure box. देखो आप इसमें दिए गए मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन, न्यूट्रल, ये 4 बॉक्स बने हुए हैं, आपको चूज़ करनी है कि कौन सा किस में जाएगा। ओके, मैं कुछ बता देती हूँ उसमें से कुछ को। फॉर एग्जांपल लीडर, तो लीडर में क्या सिर्फ मेल होते हैं? नहीं, बोथ विल बी देयर, सो इट विल कम अंडर कॉमन जेंडर। फाइन, हेट मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस। और हाँ, वन मोर थिंग इज़ दैट, जैसे कि गर्ल का मैस्कुलिन जेंडर बॉय है, ठीक है, या फिर बॉय का फेमिनिन जेंडर गर्ल है, उसी तरह बहुत सारे का अलग अलग होता है। जैसे कि हॉर्स का मेयर, अगर मास्टर है तो मिस्ट्रेस, उसका फेमिनिन जेंडर, ठीक है। तो उसी तरह अगर हेड मिस्ट्रेस यहाँ लिखा है, इट मीन्स इट विल कम इन योर फेमिनिन जेंडर। गॉट इट, ये आपका हो गया फेमिनिन जेंडर। कज़न, आप, हाँ, वन मोर थिंग चिल्ड्रेन, नेवर टेल कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, ओके, दिस इज़ रॉन्ग। कभी आप नहीं बोल सकते हो कज़न ब्रदर है, ही इज़ माई कज़न ब्रदर, ही शी इज़ माई कज़न सिस्टर, नो, दिस इज़ रॉन्ग। यू हैव टू से ओनली कज़न। ओके, तो कज़न भी आपका दोनों में आ रहा है, मीन्स फॉर इट इज़ इंक्लूडिंग बोथ मेल एंड फीमेल, इट मीन्स इट विल बी कम अंडर what, which gender, common gender. Okay, and then see children, servant is your what, this is your masculine gender, and then its feminine is maid, servant का maid, तो यहाँ है milk maid, then this will come under your feminine gender. Wood, तो wood is what, this is your this is the non living thing, so it will come under what, it will come under neutral gender. Fine, so in this way you will do all this question. कम टू द सेकेंड वन, इसमें आपको नाउन को अंडरलाइन करना, यू हैव टू जस्ट अंडरलाइन द नाउन्स एंड देन यू हैव टू राइट द जेंडर, ओके, नेम ऑफ द जेंडर। सी द फर्स्ट वन, माई नेफ्यू इज़ एन आर्टिस्ट, ओके, देयर आर 2 जेंडर, नेफ्यू एंड आर्टिस्ट। तो नेफ्यू आप अंडरलाइन करोगे और बताओगे ये कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। आर्टिस्ट अंडरलाइन करोगे आप, देन कॉमा देकर लिखोगे उसके बगल में ये कौन सा जेंडर है। गॉट इट। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 2, द लोएनेस अटैक द मेयर, तो लोएनेस इज़ व्हाट, दिस आपका ये कौन सा जेंडर है, आप बताओगे इसे, अंडरलाइन करोगे लोएनेस और मेयर को, एंड देन यू विल टेल देयर जेंडर नेम ऑल्सो, ब्लैंक्स दिए क्या उसमें आप नेम लिखोगे। गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द थर्ड वन, मैच द वर्ड्स ऑफ अपोजिट जेंडर। मैंने बताया कि गर्ल का अपोजिट क्या, बॉय, तो ये अपोजिट जेंडर भी तो हो गए, अगर ये अपोजिट है तो जेंडर में भी अपोजिट हो रहा है ना। एक आपका मेल है एक फीमेल है, देन इन दिस वे आपको यहाँ क्या करना, यू हैव टू जस्ट मैच द वर्ड्स ऑफ अपोजिट जेंडर। आपको यू हैव टू मैच मैस्कुलिन विथ फेमिनिन, इट्स फेमिनिन मीन्स जो भी है इसका फेमिनिन होगा उससे आपको मैच कर देना है। फाइन, अगर गर्ल है, अगर इधर बॉय है इधर गर्ल ढूंढना होगा आपको, तो बॉय को गर्ल से मैच करोगे। इन दिस वे यू विल डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। कम टू द फोर्थ वन, इसमें आपको जेंडर चेंज करना, यू हैव टू चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। सी चिल्ड्रन, इन ईच सेंटेंस some words are underlined, okay, and what you have to do, you have to just change their gender. For example, if he is there, then its feminine gender will be she, okay. Emperor है, then it will be empress, okay. So in this way you will write down the you will write its opposite gender, and then you will write the whole sentences, it means you have to rewrite it, okay.
rewrite the sentences. And this way you will do this question also. Now that's all. This is the last question. So that's all for today. Hope you would have understood this chapter very well. If you will be having any problem, then you can ask me. So thank you, and it's time to say you goodbye. Bye bye. Thank you.